Bismillahirrahmanirrahim. My name is Muhammad Saad, and we have launched, kind of relaunched this thing again, where हम कोशिश करेंगे कि हम वीकली या वीकली नहीं, बट प्राइमरीली कोई भी मेजर न्यूज़ जो है उसको हम कवर करने की कोशिश करें, उसके ऊपर डिस्कशन करें। तो पिछले एक हफ्ते से जो एक खबर बिलखसूस तालीम के हवाले से जब हम बात करते हैं पाकिस्तान में, तो वी आर प्राइमरीली फोकस्ड ऑन द वेस्टर्न एजुकेशन, जो कि जिसे हम दुनियावी तालीम कहते हैं। और मेजरली जो रिलीजियस सर्कल से जो खबरें आती हैं उसके ऊपर ज़्यादा तवज्जो नहीं होती, ना मेन स्ट्रीम मीडिया की, ना जो हमारा डिजिटल मीडिया लैंडस्केप है। लेकिन फिर वहाँ पे इस तरह की खबर आती है, जिस तरह की खबर स्वात के अंदर से आई कि देर वाज एन इंसिडेंट वेयर जो कारी था मदरसे का, उसने बच्चे को इतना तशद्दुद किया कि वो जान बहक हो गया। तो फिर हमने देखा कि सारा मीडिया भी एक्टिव हुआ, एनजीओज, यू नो, द होल सोशल मीडिया, जो उसके ऊपर ट्रेंड्स, हैशटैग, जो जिस तरह से वो काम करते हैं। तो मेरे ख्याल से उसी के ऊपर हम आज की इस नशिस्त को, उसको क्या कहते हैं, मौजूए बहस बनाएंगे कि एक तो ये कोई नई चीज़ नहीं है, इस तरह की पनिशमेंट देना मदारिस के अंदर बिलखसूस एक नॉर्मल सी बात है। और चूंकि वो एक पीक पे नहीं जाता, तो इसलिए वी काइंड ऑफ रब इट अंडर द कारपेट। तो चूंकि ये इंसिडेंट हुआ है और उसके बाद हमने देखा कि बयान भी आया, आई थिंक डीसीओ का, कि वो मदरसा इलीगल था। अब ये भी सोचने वाली बात है कि वो मदरसा इलीगल था तो वो इतने सालों से वहाँ क्या कर रहा था, किसने इजाज़त दी हुई थी, जाहिर सी बात है। और फिर उसके अंदर इतने स्टूडेंट से उनकी लाइफ एट रिस्क थी, और इतनी देर तक किसी ने नहीं पूछा अनलेस अनटिल कि इंसिडेंट हो गया। तो डू शेड योर ओपिनियन कि आपका क्या ख्याल है कि वेयर थिंग्स वेंट रॉन्ग, और हाउ डू यू थिंक वी कैन मेक दिस सिचुएशन बेटर, स्पेशली when it comes to the corporal punishment in madaris? Thank you very much for raising this issue. I think we should start with some that we have around 112 million children in Pakistan Yeah. and under the age of 18. And according to uh, acclaimed NGOs who work on child rights like SSDO, Hmm. they have reported last year that around 7,608 students and children were victims of crimes of various natures. Hmm. So perhaps this particular issue is one of the severe problems our country is facing, where madrasa students are being victimized in a manner that there is no government regulation that prevents torture. Yeah. So primarily it is sexual exploitation because I was listening to the interview of Farhan, who was the victim. Hmm. His grandfather's interview, he mentioned that that teacher, Muhammad Umar, I think his name was, and he was trying to get some sexual favors from that students, and he had reported that to his family as well. But his father was in Saudi Arabia, so I think no one took it seriously. And eventually, that teacher vented out on him. And this is something which we see normally. Torture is normal in madrasa-based education in Pakistan. So there have been many reforms, and the government has tried many times since 2002 to regulate madrasas and this religious education in Pakistan. But unfortunately, there has been little progress on that front. So I think it was a condemnable incident, and it was a crime, and perhaps the government should take आई initiatives. थिंक गवर्नमेंट की तरफ थोड़ा सा हम बाद में आएंगे। मुझे बताएं, इट हैज़ डिफरेंट लेयर्स टू दिस प्रॉब्लम। मतलब एक कल्चरल लेयर है कि जिसके अंदर Mm, मार पीट को
एज अ नेसेसिटी देखा जाता है कि बच्चे को जिस तरह मारना फॉर हिज तरबियत, टू करेक्ट हिज सर्टेन सर्टेन लाइक हैबिट्स, एक आम सी, एक नॉर्मल सी बात है, एक हाउस होल्ड डिस्कशन है कि जी बच्चों को मारना तो एक नॉर्मल सी बात है। उसके अलावा फिर एक। Actually, this doesn't, like, I understand that, but the problem lies here that uh, when in school, there is certain kind of a regulation. There is a या। layer which is हम्म। laid down by the government. हम्म। So everything education has to be regulated by the government. या। If like culturally, I think culturally it is important that students who do not have access to regulated education, हम्म। they should be homeschooled. There are many other means to protect their लेकिन आपको नहीं लगता protect. कि क्लास फैक्टर एक बहुत ज़्यादा फैक्टर, एक बहुत बड़ा फैक्टर है? बिकॉज प्राइमरीली मदरसों में वही बच्चे जाते हैं जो स्कूल जाना अफोर्ड नहीं कर सकते, स्पेशली इन दिस केस जो ये एक ऐसा मदरसा था जो फॉर्मली ना वफाकुल मदारिस की तरफ कहीं से रजिस्टर्ड था, ना लोकली डिस्ट्रिक्ट के पास कोई उसका रिकॉर्ड था किसी किस्म का कि वो कितने तो बच्चे हैं एक्चुअली ये और होता है ना कौन कि पढ़ा मैं लिखा आपको होता बताता है। हूँ, जो मोहल्लों की मस्जिदें होती हैं, हम्म। तो मसाजिद में तो जो ये लोग होते हैं, ये बस उनकी कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होती। वो तो कोई प्रॉपर मदरसा हो, ये तो मुझे लगता है कोई मस्जिद थी जिसमें नहीं, नो, बस इट वाज अ प्रॉपर मदरसा। और अच्छा, जहाँ पे मतलब। नहीं, अगर प्रॉपर मदरसा होता, वही मैं कह रहा हूँ, तो वो वफाक के साथ फिर जी। एफिलिएटेड होता। या। और यानी यहाँ पे ज्यादातर जो मसाजिद हैं, उनमें ये मकतब खुले हुए हैं छोटे छोटे, जिनमें लोग जो है ना, वो मोहल्ले के लोग जो हैं, वो बस पेश इमाम के पास भेज देते हैं हम्म। स्टूडेंट्स को। और वो फिर वहाँ पे कुरान पढ़ते हैं, और वो इस तरह से उनके लिए होता है। लेकिन ये रेगुलेशन जो है ना, ये बड़ी ज़रूरी है। इसमें कल्चरली जो चीज़ आपने कही ना, उसमें इम्पोर्टेंट बात ये है कि सबसे पहली चीज़ तो, जो पहली दरसगाह है, वो तो माँ की गोद है। ठीक है ना। फिर उसके बाद होम स्कूलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अप टू द एज ऑफ, यानी 7। मेरा ख्याल ये है कि ना स्कूल भेजना चाहिए बच्चों को, ना उनको कोई इस तरह की, यानी आउटसाइड इन्वायरमेंट के साथ उनका कोई होना चाहिए। उनको घर में ही उनकी तरबियत होनी चाहिए। और उसको फैमिली सिस्टम के अंदर इंटीग्रेट करना, और वो सारा कुछ, वो उसके लिए बड़ा एक ना प्रॉपर मूवमेंट की ज़रूरत है, अवेयरनेस की। या। और मस्जिद में ये होता है कि पेरेंट्स अपनी जान छुड़ा लेते हैं कि अच्छा, बस हमने बस हाँ। पैदा कर दिया, तो अब आ जाओ, बस वो मस्जिद है। और बस उसको वो देखते नहीं है कि उसका बैकग्राउंड क्या है, उसकी कोई एंटीसीडेंट वेरिफिकेशन नहीं होती, और वो बस उसको भेज देते हैं वहाँ पे। तो ऐसा तो आप खुद अपने आप को, यानी अपने जो औलाद है उसको उनके हवाले कर रहे हैं ना। तो पहली तो बात ये है कि आपको उनको खुद ओन करना होगा, अपने बच्चों को। और अगर आप ओनरशिप नहीं लेते, तो वो फॉर एनी रीज़न, ठीक है ना, कि आजकल समाजी मामलात हैं, प्रॉब्लम्स हैं, तो उन वो अपनी जगह पे हैं। लेकिन असल में तो ये देखना चाहिए ना कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टुवर्ड्स योर चाइल्ड। और वो उसको शुरू होता है कि आप घर में उसकी तालीम और तरबियत का पहले एहतमाम करें। फिर आपकी जो सेकंड जिम्मेदारी है, वो ये है कि आप उसको ऐसी जगह में भेजें जहाँ पे उसको जो है इस टॉर्चर का और विक्टिमाइजेशन का खौफ ना हो। वो वहीं पे होता है कि आप अब यहाँ पे आती है बात की, जी एजुकेशन जो है वो तो गवर्नमेंट का यानी मतलब की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो गवर्नमेंट का अगर स्कूल है, या जाहिर सी बात है, अगर वो अ, ये जो मकातिब में, मसाजिद में, तो इनको अगर वो कोई रेगुलेट कर लें, मेरा नहीं ख्याल कि लोग इस पे एतराज़ करेंगे कि वो रेगुलेट करें। लेकिन इनके पास कोई पैराफर्नेलिया नहीं है। ये वो बहाना लगा देते हैं कि नहीं जी, वो तो आते नहीं है, वो ये इस तरह से, ऐसा नहीं होता। इनके पास अथॉरिटी है। ये अगर वो लाउड स्पीकर का लॉ इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, तो जाहिर सी बात है, अगर बच्चों के लिए भी ये अगर इस तरह का कोई पुलिसिंग का निज़ाम वो तय करें कि जो अनरेगुलेटेड मदारिस और मकातिब हैं, तो उनको फोल्ड में लेके आना चाहिए। और जो ट्रेनिंग ऑफ टीचर्स है, वो भी बहुत ज़रूरी है। यानी सर्टिफाइड टीचर वहाँ पे हो, तो उसको आजकल तो ये एप्स मैप्स और इस पे वो ट्रैक एंड ट्रेस का सारा सिस्टम है, बिल्कुल। तो वो बिल्कुल। इम्प्लीमेंट हो जाए। कोई इतनी इतनी बड़ी कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि वो नहीं हो सकती। लेकिन असल में होता ये है कि हम जब तब जागते हैं जब कोई इंसिडेंट हो जाता है।
मसला एग्जैक्टली। ये है, जब अब एक्सीडेंट हो गया तो अब सब जाग गए, सबको अब ये याद आना शुरू हो गया कि नहीं हमारी ये तो बहुत ज्यादती हो गई है, ये हो गया वो हो गया। लेकिन क्राइम होगा, ये तो हमें पहले से अपने आप को ये समझा लेना चाहिए कि क्राइम होगा। हम्म। लेकिन क्राइम को पहले प्रिवेंट करने के लिए और फिर उसके बाद उसको कंट्रोल करने के लिए कौन से ऐसे टूल्स और एलिमेंट्स आपने इम्प्लीमेंट किए हुए हैं कि जिनकी वजह से ये क्राइम्स जो है ना वो कर्टेल किया जा सके। अब अगर फर्ज करें 112 मिलियन बच्चे हैं और उनमें से 7,608 रिपोर्ट हो रहे हैं और कई तो हजार रिपोर्ट ही नहीं हुए होंगे, तो बिल्कुल। उनको उनकी तरफ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। अब जीरो तो नहीं हो सकता, जाहिर सी बात है, जीरो करना तो वो मुमकिन नहीं होगा। लेकिन हम जब ये बात करते हैं तो हम एज ए सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बात करते हैं ना कि ताकि लोगों को इस तरफ उनकी तवज्जो मबजूल करवाई जाए कि वो पहले एहतियात करें, फिर उसके बाद जो है ना वो ब्लेम भी करें लोगों को। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि देखें, ये बात तो हमने कर ली कि ये जो पॉलिसी फैक्टर है, लेकिन ये एक बड़ा दिलखराश वाकया है। अगर आप इसको एज ए यानी एक इंसानियत के नाते भी आप अगर देखें ना, ये ना तो हमारी कोई मजहबी तारीख में इसकी कोई मिसाल मिलती है कि बच्चों के साथ जो है ना वो हम्म। कोई इस तरह का जुल्म रवा रखा गया हो कि उनको मार पीट करके तो उनको पढ़ाया गया। ठीक है ना, बिल्कुल। आप उनको मार पीट करके उन्हें, जब आप मारते और पीटते हैं लोगों को और उनको फिर कहते हैं कि नहीं आप ये तालीम हासिल करें, तो वो मारपीट याद रखता है, उसको वो उसका कुछ याद नहीं रहता। वो तो बस ठीक है उसने रट्टा लगा लिया होगा, वो हिफ्ज भी कर लेगा वो, लेकिन उसके जहन में जो एक इम्प्रेशन बैठ गया है कि ये जिस तरह से उसको सिखाया गया है, तो वो तो आगे जाके उसमें उसके यानी मतलब ये है कि उलट ही कुछ करना है, उसका कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट उसकी शख्सियत पर नहीं पड़ेगा। बिल्कुल। तो इस चीज पे तो एक यानी मिन हैसुल कौम हमें ये देखना चाहिए कि हर बंदा पहले अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम्म। अदा करे। वो शुरू होती है पेरेंट्स से। हम्म। पेरेंट्स जो हैं डू वो यू पहले थिंक, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ा लें। सा मैं, और अगर आई वर टू कट यू ऑफ, डू यू थिंक कि जो हमारी जो रिलीजियस लीड है, एलीट, जो मजहबी तबकात हैं जो नुमाइंदगी करते हैं, जो कहते हैं कि हमने मदारिस को प्रोटेक्ट करना है फ्रॉम एनी, क्या कहना चाहिए, फ्रॉम एनी गवर्नमेंट लॉज और गवर्नमेंट इन्फिल्ट्रेशन, और इवन आपने बात की है कि जब भी गवर्नमेंट बात करती है कि हमने रेगुलराइज करना है मदारिस को या मेन स्ट्रीम करना है या सिलेबस को हमने देखना है कि क्या पढ़ाया जा रहा है, तो एक तबके की तरफ से उन्हें थोड़ा सा पुशबैक मिलता है। डू यू थिंक these kind of hurdles, or these kind of people, और जो मतलब ये इंसिडेंट, it's not out of like, how do I say this, मतलब ये कोई आउट ऑफ द ब्लू नहीं हुआ, वी नो कि मदारिस के अंदर इस तरह की वाकयात आर काइंड ऑफ अ नॉर्म नाउ। तो हाउ मच रिस्पॉन्सिबिलिटी वुड यू पुट इन ऑन दीज सर्कल्स, कि जो बात करते हैं कि हमने प्रोटेक्शन करनी है मदारिस की, और उनको हमने क्या कहना है, मतलब स्टेट इन्फिल्ट्रेशन से सेव करना है। सो डू यू थिंक इन किन के ऊपर भी कोई आती है इस हवाले से रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि जिस बच्चे को माँ बाप भेज रहे हैं मदरसे के अंदर, वो बच्चा वहाँ सेफ एंड सिक्योर इन्वायरमेंट के अंदर अपनी तालीम जारी रख सके? देखें, ये तो वही बात होगी कि स्टेट विद इन अ स्टेट हो गई ना। अगर रिलीजियस माइनॉरिटी या कोई भी मैंने रिलीजियस पॉलिटिकल रिलीजियस माइनॉरिटी में इसको कहता हूँ, अगर वो इसको कोई पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए कोई इस्तेमाल करती है और अपनी उसको वो कहते हैं, तो ये तो जाहिर सी बात है कि आप ये आउटलॉज हैं आई थिंक। और देयर इज स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और स्टेट को आपको मानना पड़ेगा, स्टेट की रिट भी होगी वरना क्राइम हो। ठीक है ना, अगर क्राइम को आप प्रिवेंट करना चाहते हैं तो देन यू हैव टू एडहेयर टू द लॉ। ठीक है ना, लॉ ऑफ द लैंड जो है उसको अगर आप वो नहीं करते तो आप मानते ही नहीं है। ठीक है, और आप कहते हैं नहीं ये स्कूल में वो पढ़ते रहे, वो लॉ में रहे, लेकिन ये जब तो ये फिर आप लोगों को अपॉर्चुनिटी दे देते हैं ना कि वो इस पे तनकीद करें। और मेरा ख्याल ये है कि इनकी जो ये जो बातचीत है ना, ये सिर्फ मेरा ख्याल है बयानबाजी तक है। अगर इस पे गवर्नमेंट डिसीजन ले ले, ठीक है ना, कि हमने रेगुलराइज करना है। अब ये क्यों नहीं लेते ये मैं आपको बता देता हूँ, इसके पीछे पाकिस्तान मदरसा एजुकेशन बोर्ड की एक पूरी स्टोरी है, ये आप जरा समझ लें। वजह ये कि अब तो खैर वो जो कन्वेंशनल एजुकेशन है उसकी उसका भी बजट इन्होंने उठा के वो करना शुरू कर दिया। वो बजट के ऊपर भी बहुत ज्यादा बहस हो रही है। असल में ये
ना फंड्स नहीं एलोकेट करते। आपको पता है ये सारे मदारिस जो है, ये जिस बुनियाद के ऊपर इन लोगों का ये क्लेम है, हमारे जो मजहबी तबका है, कि ये हम इसको को नहीं रेगुलेट करना देंगे, उसकी वजह वो प्राइवेटली फंडेड है। ठीक है ना। अब प्राइवेटली फंडेड मदारिस को आप जब रेगुलेट करने जाते हैं तो वो कहते हैं कि जी हम क्यों करें, आपने स्कूल को तो फंड दिया हुआ है। ठीक है ना। आपके पास उसका यानी लाखों टीचर्स हैं आपके पास पूरे मुल्क में, आपके पास वजारत है उसकी, सारा कुछ है, और इधर आप कहते हैं कि नहीं ये हमने इसको रेगुलेट करना है लेकिन उसको फंडिंग नहीं देनी। तो उसके लिए तो आपको फिर वो पूरा वही जो आपने सिस्टम एक कन्वेंशनल एजुकेशन के लिए फराहम किया हुआ है, वही आपको यहाँ पे भी इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। ठीक है ना। तो मैं समझता हूँ कि इसमें ये जो उनका क्लेम यहीं पे ख़त्म हो जाएगा कि जब इसके लिए प्रॉपर फंडिंग हो। ठीक है ना। और वो एक प्रॉपर वजारत हो, बेशक वो यानी मतलब इसी यानी ये जो पाकिस्तान मदरसा एजुकेशन बोर्ड था ये मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर्स के अंडर था। ठीक है ना। तो ये भी हो सकता है कि उसमें वो आप उसके अंडर उसको ले आए, अगर वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर आप उसको नहीं लेके आ सकते, क्योंकि उसमें फिर वो आइडियोलॉजिकल बैरियर्स आ जाते हैं और ये सारे मामला शुरू हो जाते हैं उसके अंदर। लेकिन चीज़ ये है कि अगर ये सिंगल नेशनल करिकुलम की बात करते थे, फिर उसके बाद ये सारी चीज़ें होती थी जो मदरसा और मकतब है ना, अगर ये तमाम, मेरे पास इसका एक सोल्यूशन था जो मैंने थोड़ा सा पढ़ा कि इसको बाकी ममालिक में कैसे रिजॉल्व किया गया है, ख़ास तौर पे जो मुस्लिम मेजॉरिटी ममालिक हैं जैसे इंडोनेशिया, मलेशिया, तुर्की और इस तरह से। ये मैंने इनको देखा, बेसिकली इन्होंने क्या किया है कि इन लोगों ने उनको स्कूल डिक्लेयर किया है, यानी मस्जिद में जो वो भी स्कूल है। ठीक है ना। तो उस स्कूल को उन्होंने अपने फोल्ड में ले लिया है। ठीक है ना। स्टेट ने अपने जैसे तुर्की में वो इमाम खतीब है उसको कहते हैं, तो वो भी प्रॉपर स्कूल हैं, उनका एक अपना यूनिफॉर्म है और अपना उनकी एक बड़ी एक है जो उसमें अच्छे टीचर्स हैं, लेकिन उसको रेगुलेट करने के लिए पढ़े लिखे लोग हैं और वो प्रॉपरली रेगुलेटेड है। इसको लेकिन उन्होंने फंडिंग दी है, उसके लिए प्रॉपर बजटिंग हुई है और वो पूरा एक प्रोसेस यानी मतलब ये कि इम्प्लीमेंट किया गया है। अगर ये यहाँ पे भी हो जाए तो मैं ये नहीं कहता जीरो हो जाएगा क्राइम, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हल हो जाएंगी। आपके ये जो मसाइल है ना, ये जो हमारे सामने हर वक्त कोई ना कोई इंसिडेंट हो जाता है, इससे बहुत इशू हो जाएगा। अच्छा दूसरा ये कि ये जो मेरा ख्याल ये कि एक जिम्मेदारी इसमें सिविल सोसाइटी की भी है। अब सिविल सोसाइटी को ये चाहिए कि हर किसी के पास टेलीफोन है, ये सारा कुछ है, उनको चाहिए कि वो इस तरह की एप्लीकेशंस और वो डेवलप कर दें कि जब कोई अगर किसी स्टूडेंट को या किसी बच्चे को इस तरह से हो तो वो अलर्ट, यानी कोई नंबर पे कॉल करे या कोई एप्लीकेशन पे उसका वो नाम दे दे, वो सारा कुछ एनोनिमसली कर देता कंप्लेन है। कर सके। हाँ यानी एनोनिमसली कंप्लेन कर दे कि ताकि उसके ऊपर कोई एक्शन हो सके। बिल्कुल। ठीक है ना। तो ये मुख्तलिफ किस्म के जो इंसिडेंट है ना, इसके लिए तो आप यानी वी नीड टू यूज टेक्नोलॉजी। ठीक है बिल्कुल। ना। और ये भी हो सकता है कि ये फिजिकल एब्यूज को प्रिवेंट करने के लिए ऑनलाइन मोड्स ऑफ लर्निंग और इन चीज़ों को भी प्रमोट करने की ज़रूरत है, ताकि बिल्कुल। गवर्नमेंट को थैंक चाहिए यू कि सो वो मच। इनसे आई भी। थिंक वी हैव डिस्कस्ड सम कोजेंट सॉल्यूशंस, लेकिन मुझे मैं आई विल जस्ट से इट एट द एंड के हमारी जो स्टेट है वो शायद उन्हें, जो इस्लामाबाद के जो लोग हैं ना, उन्हें लगता है कि हम शायद स्वीडन में हैं, नॉर्वे में हैं। तो उन्होंने तो बिल पेश किया सेनेट के अंदर के चलें, लेट्स लेट्स एंड द कैपिटल पनिशमेंट, अबॉलिश कर दें कैपिटल पनिशमेंट को। उन्हें लगता है पता नहीं हम्म। कोई हम स्वीडन और नॉर्वे में आ गए हैं और ये कैनेडियन है। थोड़ा वो इस्लामाबाद के इर्द गिर्द का इलाका बड़ा खूबसूरत है, तो शायद उन्हें उन्हें ये आइडिया होता है। But I guess the society and the religious elite and then the state itself needs to take coherent steps to address this issue, क्योंकि ये कोई अब तो जाहिर सी बात है, अब वाकया होता है, वी मूव फ्रॉम एक स्टोरी से दूसरी स्टोरी, एक हैशटैग से दूसरा हैशटैग। कल हम एक टॉपिक पे बात कर रहे होते हैं, फिर परसों कोई और टॉपिक आ जाता है। दैट्स हाउ द न्यूज साइकिल इज। बट टू सेव आवर चिल्ड्रन एंड टू मेक श्योर that wherever they go, may it be a school or a madrasa, they remain in a secure environment. So I guess heads should start rolling. बस ये And बॉटम लाइन इसमें ये कि टू एंड दिस डिबेट इट इज दैट वी कैन नॉट लिव एट द एक्सपेंस ऑफ आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस अगेंस्ट ईच अदर। yeah, ठीक है ना। आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस रहेंगी बट सॉलिडारिटी डज नॉट मीन कंफॉर्मिटी। है ना। तो वी हैव टू कम टुगेदर फॉर प्रॉब्लम्स एज सच, और एक दूसरे के साथ जो है ना वो हमें को एग्जिस्ट करना पड़ेगा। देयर इज नो वे आउट। ठीक है ना। ये नहीं हो सकता कि वो अगर कोई इस्लामाबाद में बैठे हुए वो समझ रहे हैं कि हम
कोई और लॉ यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर देंगे विदाउट असेंट ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान, तो वो इम्पॉसिबल है। तो वो उनको भी समझने की ज़रूरत है, और दूसरा हमें भी समझने की ज़रूरत है कि हम भी किसी के ऊपर मॉरल पुलिसिंग नहीं कर सकते, कुछ कोई चीज़ इम्पोज नहीं कर सकते। वी हैव टू लिव एंड टुगेदर, ठीक है ना, बिल्कुल। और वी हैव टू को एग्जिस्ट। तो जो भी हमारी कॉमन ग्राउंड्स हैं उनके ऊपर हम सोचें, और जो टेक द गुड एंड लीव द बैड। हम्म। तो इस अगर फॉर्मूले के साथ हम जिंदगी गुजारें तो ये हमारे लिए बेहतर होगा। लेकिन ये पॉलिसी और ये पॉलिटिकल डिबेट्स हैं, बात ये है कि जो प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस हैं फॉर प्रिवेंटिंग क्राइम, वो तो यही है कि ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम हो, एक रेगुलेशन हो, होम स्कूलिंग हो, ठीक है ना, पेरेंट्स अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, और जो है ना, ताकि बच्चे जो हैं वो इस तरह के खौफनाक हादसों से बचें। Thank you so much. I guess let's wrap this, and maybe I guess we'll try to record another one in the future. Jazakallah. Thank you so इंशाल्लाह much. इंशाल्लाह, ओके जी, अल्लाह हाफिज। Allah Hafiz.